Dear students, as I promised in the series of the internship orientation, this is the session 3 where we are going to discuss about the lesson conduct. So this is very important activity. बहुत ही important activity होती है ये internship की, जिसमें you have to conduct the lesson plan. So what kind of things which you should have in your mind and how you can prepare for this and how a teacher is evaluate you. So all these things we are going to discuss in this session. So first of all, we'll see the evaluation points in the lesson conduct. When you are planning a lesson uh, for the internship, जब आप internship के लिए lesson plan कर रहे होते हो, तो ये स्टेप्स हैं जो आपको ख्याल रखने हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स के आधार पर आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा कि आपका लेसन जो है वो किस तरीके से आपने कंडक्ट किया है. द नंबर 1 स्टेप इज लेसन नोट. Number 2 is introduction. Number 3 is presentation of the lesson. Number 4 is recapitulation. Number 5 is application. And number 6 is homework. So these entire steps are very important because इनमें marks का distribution equal होता है and you will get the marks out of 100. So each and every step is very important. Now we'll start with the lesson note. So when you are preparing the lesson note, be careful because आपकी planning जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका lesson भी conduct अच्छा होगा. This is the common format for the lesson note. आप अपना lesson plan बनाइए और इसके अंदर आप उसको note down करिए. All these steps are there जिसमें previous knowledge, statement of aim, blackboard work and your guide name, your name, signature, date, everything is mentioned. In the next page, teaching points you have to mention here, objectives and the specification, and teaching aids and references what you are going to use. These things you have to write down here. Next is generalization. वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा. इसका जो नेक्स्ट पेज होता है उसके अंदर टीचर पीपल एक्टिविटी और उसके बाद में एवेल्युएशन और होमवर्क, ये सारी चीजें भी आपको लेसन नोट के अंदर मेंशन करनी है. एंड योर लेसन नोट शुड बी एग्जैक्टली द रिप्लिका विच यू आर गोइंग टू टीच इन द क्लासरूम. जो भी आप क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हो उसकी पूरा रिप्लिका होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा कुछ और रहे हैं और आपका लेसन नोट कुछ और बता रहा है. And what are the key points on which we are going to analyze you? These are the points here. These are the 20 points जिनके आधार पर कि आपका evaluation किया जाएगा. So the next topic of this is lesson note. Lesson note में जो हमने चीजें ख्याल रखनी है वो है the lesson note should be very neat, correct and complete, concise. जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो सारी आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए. नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएशन इंट्रोडक्शन. आप जब भी अपने लेसन नोट में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिख रहे हैं तो उसका एवेल्युएशन बीइंग टीचर एजुकेटर किन पॉइंट्स पे किया जाता है वो पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं. दैट इज रिलेवेंट एंड स्टिमुलेटिंग, revival of previous knowledge and link with the topic, and statement of aim and the title writing. So ये 3 points हैं जो कि बहुत ज़्यादा important हैं. So whenever you are going to prepare the introduction part of the lesson, you have to connect the previous knowledge or prior knowledge of the student with the new knowledge. इस बात का आपको specifically ख्याल रखना होगा. Next is criteria for evaluation presentation step. जो प्रेजेंटेशन स्टेप जो है जिसका कि एवेल्युएशन जो आपके टीचर एजुकेटर्स करते हैं वो किन पॉइंट्स पे करते हैं आपका एवेल्युएशन, वो सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं. नंबर 1 इज क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी इन नरेशन एंड इलस्ट्रेशन. सो व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग योर लेसन और आप जब लेसन डिलीवर कर रहे हो तो आपके नरेशन में, आपके एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा फ्लुएंसी और क्लियरिटी होना चाहिए. क्वेश्चंस
are the very important part of the lesson presentation, बिकॉज क्वेश्चंस ही होते हैं जो कि आगे लेसन को बढ़ाते हैं और आपको ये बात बताते हैं कि जो स्टूडेंट आप जिन्हें पढ़ा रहे हैं उन्होंने कितना लर्न किया. सो योर क्वेश्चंस शुड बी वेरी क्लियर, कंसाइज एंड ग्रामेटिकली वेरी करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकल एंड थॉट प्रोवोकिंग. थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट. ऐसे क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए जो कि थॉट प्रोवोकिंग ना हो. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस एंड रेनफोर्समेंट. जब बच्चे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो आपको रेनफोर्समेंट जरूर देना है. इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो उस पूरे कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए जो कि आप पढ़ा रहे हैं. इट शुड नॉट हैपन दैट few of the content you missed in the questions. नेक्स्ट इज ब्लैक बोर्ड वर्क. ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं, वर्ड की साइज कितनी है, क्लियरिटी कितनी है, हैंडराइटिंग कैसी है, और ब्लैक बोर्ड वर्क करते हुए आपका पोस्चर और पोजीशन क्या है. ऑल थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जिसका कि आपको ख्याल रखना है. नेक्स्ट इज क्लियरिटी इन रीडिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन. Suppose you are doing any kind of demonstration or in the language if you are reading, so there has to be clarity. Demonstration जब आप करते हैं साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए तो उनके अंदर एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए. उसके अंदर आपकी एरर्स नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट है क्लासरूम इंटरेक्शंस. Classroom interaction is very important because the teaching learning process is a reversible process. आप और आपके स्टूडेंट, आप दोनों हैं जो कि सिरे हैं. इन दोनों के अंदर इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्लासरूम प्रेजेंटेशन और क्लासरूम लेसन कंडक्ट के समय पर. नेक्स्ट इज यूज ऑफ टीचिंग एड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट टीचिंग एड्स यू आर यूजिंग, दे शुड बी वेरी रेलेवेंट टू द टॉपिक. दे शुड बी वेरी इफेक्टिव ऑल्सो. इट शुड नॉट लाइक कि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होने चाहिए. टीचिंग एड्स आपकी हेल्प के लिए हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचिंग एड आपने बना लिए हैं और आप उनको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. Next is mastery of the content. This is very, very important. Whatever you are going to teach in the classroom, you should have the mastery on the content. Then only your confidence level will be high. आपका confidence level जो है बहुत high होगा जब आपको जो content पढ़ा रहे हैं उसकी mastery होगी. तो ये सबसे ज्यादा important चीज है. Next criteria for the evaluation is recapitulation. Recapitulation lesson conduct के समय में बहुत ही important step है. Why it is important? Because this is the step which shows that how much objectives you have fulfilled till now. जब आप class conduct करा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हो. उन ऑब्जेक्टिव्स में से कितने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं, कितने अभी और बाकी हैं, वो सारी चीजें हमें रिकैपिटुलेशन से ही पता लगा चलती है. सो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स जब आप उनसे क्वेश्चंस करते हो वो बताता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स कितने कंप्लीट हुए हैं. सो the recapitulation should be based on the objectives which you have made during the lesson plan, and the student response is very very important for the recapitulation. Next is criteria for evaluation application. So application should be very appropriate एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन हैज टू बी देयर. जो भी आप लेसन के अंदर बना रहे हैं, जो भी आप चीजें अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीजें आपने यूज की हैं, वो बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट स्पेसिफाइड होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, और जो आपने नॉलेज दी है बच्चों को वो नॉलेज बच्चों ने कितनी अंडरस्टैंड की, देयर हैज टू बी अ वॉच ऑन दैट. नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन होमवर्क. होमवर्क जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लेसन प्लान का. किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है? बिकॉज नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, ये वाले जो है ऑब्जेक्टिव्स आप इजीली पूरा कर सकते हो अपने क्लासरूम के अंदर, बट स्किल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए होमवर्क बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है. होमवर्क जो है आपका एक्टिविटी बेस्ड आप रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं जिसके अंदर की बच्चों के कोर एलिमेंट और वैल्यूज और लाइफ की जो स्किल्स हैं उनको उनका इम्प्रूवमेंट किया जा सके या उनका असेसमेंट किया जा सके. सो होमवर्क शुड बी बेस्ड एक्टिविटी based on the activity, and you can
actually make the questions based on the core elements, values and the life skill. इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। जो आप ऑब्जेक्टिव्स लेके चले हैं 30-35 मिनट की क्लास के लिए, वो कितने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए, क्या जो स्टेप्स आपने फॉलो किया लेसन कंडक्ट के समय वो सफिशिएंट था। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेसन अपना टाइम पे कंप्लीट कर दिया मींस यू आर हैविंग द स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो ये सारी क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर कि आपका लेसन जो है वो इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट, ओवरऑल इम्प्रेशन। ओवरऑल इम्प्रेशन बेसिकली आपने पूरा लेसन कंडक्ट जब किया तो उसमें एक कंप्लीटनेस कितनी है वो इवेल्युएशन की जाती है ओवरऑल इम्प्रेशन के अंदर। सो देयर हैज टू बी ए कंप्लीटनेस एट द coordination and the hierarchy in the lesson preparation as well as in the lesson conduct. So these are the evaluation criteria for the lesson conduct. इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 100। इसकी जो इवेल्युएशन शीट होती है उसमें आपको नाम लिखना होगा, अपना रोल नंबर लिखना होगा एंड यू आर गेटिंग मार्क्स अकॉर्डिंग टू दी रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। सिग्नेचर ऑफ द प्रोफेसर यू आर रिक्वायरिंग इन द एंड। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द लेसन कंडक्ट जिसके अंदर ये सारी स्टेप्स हैं और ये सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर कि आपका इवेल्युएशन किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन कंडक्ट इन द इंटर्नशिप। So thank you all for watching this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you.